कभी आपने सोचा है कि एक महंगा लग्जरी बैग जो मार्केट में लाखों का बिकता है, वो असल में कितने में तैयार होता है? या वो जिम की लेगिंग्स जो आपने $100 में खरीदी थी, उस पर ब्रांड का कितना प्रॉफिट होता है? तो बस आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगा। एक ऐसा टॉपिक जो इस वक्त सोशल मीडिया, खास तौर पर टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर धमाका कर चुका है। वायरल हुआ है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। जी हाँ, चाइनीज़ फैक्ट्रीज़ अब खुद बता रही हैं कि बड़े-बड़े लग्ज़री ब्रांड्स दरअसल किस तरह काम करते हैं और सच जानकर आप शायद हैरान रह जाएँ और कुछ बोलें कि भाई हमें तो ये पहले से ही पता था, इसमें क्या हैरानकुन बात है? पर मैं फिर भी बात करूँगा। तो भाई लोगों कहानी कुछ यूँ है कि चाइना में कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो दुनिया के महँगे तरीन ब्रांड्स के लिए माल तैयार करते हैं, अब सामने आके टिकटॉक और सोशल मीडिया पर वीडियोज़ डाल रहे हैं। ये लोग वीडियोस में दिखा रहे हैं कि एक प्रोडक्ट कैसे तैयार होती है, उस पर कितनी लागत आती है और मार्केट में वो कितने की बिकती है। मसलन एक अर्मिस बर्कन बैग जो मार्केट में $38,000 का है, वो बैग सिर्फ $1,300 में फैक्ट्री में तैयार होता है। This Birkin bag at Hermes Boutique will cost you 38,000 USD. But what is the real cost out of the factory? Today, I'm going to break it down in front of you, step by step. First thing first, Hermes only use the leathers from the three top-level suppliers. One is called Nuti from Italy. And the second is Weinheimera from Germany. And the third is Haas from France. One piece of Togo leather, the same leather as this one, will cost 450 USD. And one piece of the leather is only enough to make one Birkin, okay? The thread. And of course, for Hermes Birkin, the thread is also the best top level. It's called Fil Al Chinois from France. This is actually the Rolls Royce in thread. For each bag, the cost is 25 USD. And then the hardware. See, this hardware is called 316 hardware. It's also known as the ocean stainless steel because it can withstand the erosion of seawater. It's the best stainless steel. For one piece of bag, the hardware will cost 150 USD. The edge oil. This edge oil is imported from Italy. It's called heat sealed edge oil. For each bag, it will cost 50 USD. The interior lining, it used lambskin imported from France. For each bag, the cost will be 100 USD. And also inside, there is a zipper from Riri brand. And the zipper for one bag is 10 USD. And then the cost of human resource. The French artisans is much more expensive than Chinese artisans. To finish one bag, the human resource cost will be 600 USD. The package, now this is not that expensive, it's 10 USD. So now to sum those up, the total cost will be 1,400 USD for one Birkin out of factory. But why Hermes will charge you 38,000 USD for one bag? That's because more than 90% of the price is paid for its logo. But if you do not care about the logo, you just want the same quality, same material, you can just buy from us. Because for our bags, we use exactly the same material, same leather, same hardware, same edge oil. The only difference is one, we don't have the logo, so we don't have to pay so much amount of money just for that logo. And second, our human resource is much cheaper. This is why this bag from our factory only costs you 1,000 USD, but even better quality and craftsmanship. और वो जिम की लोलो लेमो लेगिंग्स जो $100 में बिकती है, सिर्फ $5 में बन रही है। Who are the suppliers behind Lululemon? Some of their yoga wears are actually from Xianglong Clothing and Huangqisheng Clothing. And guess what? Both factories located in Yiwu here. And these two factories also supply clothing for Fila and Under Armour. I guess most of you know the price of Lululemon or other big brands. They sell you a legging pants for $100. And guess what? Here in these two factories, you can get them for around $5 to $6. Crazy! And what's even better? The material and the craftsmanship are basically the same because they all come the same production line. See, this is why people come to China and looking for the OEM factory because they just can get the cheapest and best quality product from there and sell you, I don't know how much. Alright guys, if you want to know more about Lululemon or any other active wear brands, leave your message in the comment section. I'm Luna, your reliable sourcing partner. तो भाई इतनी महंगी चीज और असल लागत इतनी थोड़ी सी, ये तो बिल्कुल ब्रांड्स का जादू लग रहा है जो लोगों को बुद्धू बना रहे हैं काफी अरसे से। अब सवाल ये है कि इन मैन्युफैक्चरर्स ने अचानक ये सब कुछ बताना क्यों शुरू कर दिया है?
तो असल में इसके पीछे एक बड़ी पॉलिटिकल एंड ट्रेड वॉर है जो कुछ सालों से अमेरिका और चाइना के दरमियान चल रही थी, मगर ट्रंप के टैरिफ वाले एपिसोड ने इस वॉर को खुले मैदान में लाके खड़ा कर दिया है। अमेरिका ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स लगाए हैं 100% टू 145% तक, और फिर चीन ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई पे अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा दिए हैं। अब इस जंग का नतीजा ये निकला है कि फैक्ट्रीज को नुकसान हुआ है और ऑर्डर्स कम आने लग गए हैं। Carnage, panic, bloodbath doesn't even begin to cut it. Chinese markets deep in the red. Now Hong Kong stocks plunged the most in almost 3 decades. तो इस नुकसान के बाद मैन्युफैक्चरर्स ने सोचा क्यों ना सीधे कंज्यूमर से बात की जाए और साथ ही ब्रांड्स की कीमतों के पीछे छुपा हुआ सच भी लोगों के सामने लाया जाए, उनको एक्सपोज किया जाए। तो जब इन वीडियोस ने वायरल होना शुरू किया तो हर कोई हैरत में पड़ गया। कुछ लोगों ने कहा कि हम तो सालों से धोखा खा रहे थे, कुछ ने कहा अब हमें सीधा फैक्ट्री से ही माल खरीदना चाहिए, और कुछ ने तो ये सवाल उठा दिया है कि आखिर ब्रांड्स हमें इतना महंगा माल बेच ही क्यों रहे हैं। सोचें, अगर आपको मालूम हो जाए कि आपने जो कीमती बैग खरीदा है वो सिर्फ 5 या 10% की लागत पर बना है, तो क्या आप दोबारा वही ब्रांड खरीदेंगे? तो आप में से कुछ अभी भी बोलेंगे कि हाँ भाई खरीदेंगे, और कुछ बोलेंगे कि नहीं, जैसे कि इन सेलिब्रिटीज ने रिएक्शन दिया है। Kardashian said, I know everyone would love it to be true, but it's not. Next, Kylie Jenner said, this is so crazy. Next, Zendaya said, well. Next, Bella Hadid said, anyone can just go online and say this. And finally, Naomi Campbell said, this is so disrespectful to all of the craftsmanship behind all of these. पर हाँ, ब्रांड्स की नींदें उड़ चुकी हैं, क्योंकि इनका पूरा बिजनेस मॉडल इसी बात पर टिका होता है कि हम एक्सक्लूसिव हैं, हम प्रीमियम हैं। लेकिन जब लोग ये जान जाएं कि वही चीज फैक्ट्री से सस्ती मिल सकती है उसी क्वालिटी की, तो ये एक्सक्लूसिव होने का तस्वुर टूट जाता है। ब्रांड्स को अब नई प्लानिंग सोचनी पड़ेगी, या तो कीमतें कम करनी पड़ेंगी, या वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, या फिर इन चाइनीज मैन्युफैक्चरर के दावों को झूठा साबित करना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल में थोड़ा मुश्किल है। अब सोशल मीडिया पर ही बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम फैक्ट्री से ये ब्रांड प्रोडक्ट्स डायरेक्ट खरीद सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ भाई, ले सकते हैं, क्यों नहीं, मगर कुछ एहतियात करनी पड़ेगी। तो मैं कहूंगा अगर आप डायरेक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने का सोच रहे हैं तो पहले अच्छी तरह कंफर्म करें, लिजिट रिव्यूज देखें और पेमेंट सिक्योरली करें। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से गुरेज करें और बेहतर है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, ताकि अगर कोई मसला हो तो क्रेडिट कंपनी आपके पैसों को सिक्योर करके मामला सही तरीके से डील करे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ब्रांड की कीमतों के पीछे क्या राज छुपा हुआ है और कैसे चाइनीज फैक्ट्रीज इस राज पर से पर्दा उठाकर पूरी दुनिया को हैरान कर रहे हैं। तो क्या आप अब भी ब्रांड पर वैसे ही भरोसा करेंगे, या आप अब थोड़ी स्मार्ट और सिक्योर शॉपिंग करना शुरू करेंगे? कमेंट पे मुझे जरूर बताइएगा, मुझे आपकी राय जानकर बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें इस वीडियो को, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो शॉपिंग में हमेशा ब्रांड्स को ही प्रेफर करते हैं। मैं हूं फवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरानकुन सच्चाई के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा और हमेशा सच को पहचानिए।